देखो ଶିଖରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଦେଶ ବିଦେଶର 30ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବେ। ନମ୍ବର 1, ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା +2 କଡ଼ା ରେଜଲ୍ଟ, ପାସ୍ ହାର 78.88%। ଯୁକ୍ତ 2 ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ପରେ କାଲି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି କଡ଼ା ପରୀକ୍ଷାଫଳ। ପାସ୍ ହାର 78.88% ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ 32,782, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ 32,461 ଓ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ 1,16,179 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏଥର ପୁଅଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଛନ୍ତି ଝିଅ। ଝିଅ ପାସ୍ ହାର 85.66% ରହିଥିବା ବେଳେ ପୁଅ ପାସ୍ ହାର 70.43% ରହିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ 84.97% ପିଲା ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାସ୍ ହାରରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 70.74% ରହିଛି। ସେହିପରି ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାରେ ପରୀକ୍ଷାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ 5,000 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ସେଥିରୁ 3,860 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ପାସ୍ ହାର 67.48% ରହିଛି। ପୁଅ ପାସ୍ ହାର 64.23% ଥିବାବେଳେ ଝିଅ ପାସ୍ ହାର 71.10% ରହିଛି। ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ 843, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ 1,751 ଓ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ 1,115 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 2, 7 ଦିନ ବିଳମ୍ବରେ କେରଳ ଛୁଇଁଲା ମୌସୁମୀ। ପ୍ରାୟ ସପ୍ତାହେ ବିଳମ୍ବରେ କେରଳ ଛୁଇଁଲା ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ। ମୌସୁମୀ କାଲି କେରଳ ଛୁଇଁବା ନେଇ ଆଇଏମ୍ଡି ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଏହା ପ୍ରଭାବରେ କେରଳରେ ପାଣିପାଗ କିପରି ଅଛି, ବର୍ଷା ହେଉଛି ନା ନାହିଁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ଗତ ବର୍ଷ ମେ 29 ତାରିଖରେ ମୌସୁମୀ କେରଳ ଛୁଇଁଥିଲା। 2021ରେ ଏହା ଜୁନ୍ 3 ଓ 2020ରେ ମୌସୁମୀ ଜୁନ୍ 1ରେ କେରଳରେ ତାର ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିଥିଲା। କେରଳ ଛୁଇଁବାର 10 ଦିନ ପରେ ସାଧାରଣତଃ ମୌସୁମୀ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥାଏ। ନମ୍ବର 3, ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ନଥିଲେ ଗଣିବେ ଦଣ୍ଡ, 23ରୁ ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭ୍। ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ନଥିବା ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ। ଆସନ୍ତା 23ରୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ହେବ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଯାଞ୍ଚ। ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନମ୍ବର ନଥିଲେ ଗଣିବେ ଫାଇନ୍। 5ରୁ 10,000 ଯାଏଁ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ ହେବ, କଟିବ ଇ ଚାଲାଣ। ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ଚଳାଇବେ ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ବିଭାଗ। ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଲଗାଇବାର ଅବଧି ଫେବୃଆରୀରୁ ସରିଛି। ଜୁନ୍ 23ରୁ ପୁଣି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଯାଞ୍ଚ ହେବ। ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରି ଯାଞ୍ଚ ହେବ ଗାଡ଼ି। ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନମ୍ବର ନଥିଲେ ଲାଗୁ ହେବ ଫାଇନ୍। 5ରୁ 10,000 ଯାଏଁ କଟିବ ଇ ଚାଲାଣ। ନମ୍ବର 4, ଅଗ୍ନି ପ୍ରାଇମ୍ ମିଜାଇଲର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ, ଡିଆର୍ଡିଓ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା। ଅଗ୍ନି ପ୍ରାଇମ୍ ମିଜାଇଲର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ। ଭଦ୍ରକ ସ୍ଥିତ ଅବଦୁଲ କଲାମ ଦ୍ୱୀପରୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ ମିଜାଇଲ୍ ଅଗ୍ନି ପ୍ରାଇମ୍ର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି। ବୁଧବାର ରାତିରେ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ଡିଆର୍ଡିଓ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମିଜାଇଲ୍ ଅଗ୍ନି ପ୍ରାଇମ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କ୍ଷମତା 1,000ରୁ 2,000 ରହିଛି। 3 ଥର ଟ୍ରାଏଲ୍ ପରେ ପରୀକ୍ଷଣ ସଫଳ ହୋଇଥିବା ଡିଆର୍ଡିଓ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହା ସହାୟକ ହେବା ସହିତ ସେନାକୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଅଗ୍ନି ପ୍ରାଇମ୍ ମିଜାଇଲର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ ପରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଡିଆର୍ଡିଓ ଓ ସଶସ୍ତ୍ର ବଳକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପାଣିପାଗ ସୂଚନା। ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଲା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ଆଲର୍ଟରେ ଏକାଧିକ ରାଜ୍ୟ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆରବ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ବାତ୍ୟା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘନୀଭୂତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇ ସ୍ଥଳଭାଗ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସିଛି। ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଏବେ ଗୋଆଠାରୁ 860 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଅତି ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏହା 13 ତାରିଖ ବେଳକୁ ପାକିସ୍ତାନର କରାଚିରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିପାରେ। ତେବେ ଏନେଇ ଆଇଏମ୍ଡି ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିନି। ବାତ୍ୟା ଭାରତର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବାର ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ। ହେଲେ ଏହା ପ୍ରଭାବ ଗୋଆ, କେରଳ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଗୁଜରାଟ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଏହିସବୁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆଲର୍ଟରେ ରହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 6, ରେପୋ ରେଟ୍କୁ 6.5%ରେ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖିଲା ଆର୍ବିଆଇ। ରେପୋ ରେଟ୍ ବା ସୁଧ ହାରକୁ ପୁଣିଥରେ 6.5%ରେ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖିଛି ଆର୍ବିଆଇ। ଗୁରୁବାର ମାସିକ ମନିଟାରୀ ନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆର୍ବିଆଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମନିଟାରୀ ପଲିସି କମିଟି ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ରେପୋ ରେଟ୍କୁ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ରେପୋ ରେଟ୍ ପୂର୍ବଭଳି 6.5% ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2023-24ରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି 4%ରୁ ଅଧିକ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2024ରେ ସିପିଆଇ ବା ଗ୍ରାହକ ଦର ସୂଚକାଙ୍କ 5.2%ରୁ କମି 5.1% ରହିପାରେ। ସେହିପରି 2024 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଜିଡିପି ଅଭିବୃଦ୍ଧି 6.5% ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2024ର ପ୍ରଥମ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ପ୍ରକୃତ ଜିଡିପି ବା ଅଭିବୃଦ୍ଧି 8% ରହିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଚତୁର୍ଥ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଏହା 5.7%କୁ ଖସିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଥିବା ଶ୍ରୀ ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 7, ଆର୍ବିଆଇଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜାରି କରିପାରିବେ ରୂପେ ପ୍ରିପେଡ୍ ଫରେକ୍ସ କାର୍ଡ। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆର୍ବିଆଇ ଗୁରୁବାର ରୂପେ କାର୍ଡକୁ ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା କରିଛି।
आरबीआई सबु बैंक रुपे प्रिपेड फरेक्स कार्ड जारी करने को अनुमति देइछंती। या सहित आरबीआई ई रुपया भाउचर परिसर वृद्धि लगी मध्य घोषणा करिछंती। एबे ए बाबद आरबीआई किछि दिन पर नियम जारी करिपारे। आरबीआई को पदक्षेप रुपे कार्ड को ग्लोबल मार्केट रे आदृत देव। यह छड़ा रुपे डेबिट क्रेडिट और प्रिपेड कार्ड को विदेश में जारी करने और भारत समेत विश्व स्तर में उपयोग लगी अनुमति रहिबो। आरबीआई को घोषणा पर विश्व स्तर में रुपे कार्ड रो पहुंच बढ़ीजिवो। आरबीआई गवर्नर 8 जून 2023 मुद्रानीति समीक्षा काଳରେ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। नंबर 8 विमान भड़ा 61% जाए कमिथिबा दाबी कले केंद्रमंत्री सिंधिया। देश में विभिन्न विमान भड़ा 61% जाए ह्रास पाइथिबा बेसामरिक विमान चलाचल मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कहिसंती। जून 6 रे विभिन्न विमान कंपनीर परामर्शदाता ग्रुप मीटिंग बसीथिला। यापर दिल्ली रु विभिन्न स्थान को लागू करा जाउथिबा विमान भड़ा 14% रु 61% जाए ह्रास पाइछि बोली से कहिसंती। विमान सेवा और यार चलाचल उपरे डीजीसीए और मंत्रालय नजर रखिथिबा सूचना देई सिंधिया कहिसंती जे दिल्ली रु श्रीनगर, लेह, पुणे और मुंबई भली स्थान को जीवा पई लागू होइथिबा विमान भड़ा 14% रु 61% जाए ह्रास पाइबा बेस खुशी देइछि। डीजीसीए और मंत्रालय दैनिक भड़ा उपरे नजर रखिछि। नंबर 9 रथयात्रा प्रस्तुति नियोजित हेबे 180 प्लाटून पुलिस फोर्स। घोषयात्रा समय पुरी सहर 180 प्लाटून पुलिस फोर्स जगिबा नहीं कहिसंती अमिताभ ठाकुर। यह जनगहली नियंत्रण और ट्राफिक सुपरिचालना पई 45 प्लाटून पुलिस फोर्स मुतयन एवं भक्तों सुविधा सुरक्षा श्रृंखलित दर्शन उपरे विशेष गुरुत्व दिया जाइथिबा नहीं कहिसंती। सेपटे श्रृंखलित रथयात्रा पई श्रीमंदिर कार्यालय रे मुख्य प्रशासक रंजन कुमार दासଙ୍କ अध्यक्षतार एक बैठक होईछि। बैठक रे परिचालना कमिटी सदस्य और सेवायतଙ୍କ उपस्थिति रे भक्तों सुविधा निमंते पर्याप्त पानीय जल, बड़दाण्डर विभिन्न स्थान रे विश्राम स्थली, आशु चिकित्सा केन्द्र सह अन्य आनुषंगिक व्यवस्था उपरे आलोचना होईछि। नंबर 10 राजधानी रे शो पूर्व भांगी पड़ा अजंता सर्कस विशाल टेंट। दीर्घ प्राय 10 वर्ष पर राजधानी भुवनेश्वर को फेरी अजंता सर्कस। हेले शो आरंभ ही सर्कस कर्तृपक्ष को क्षति सहवाक पड़ी। काली अपराह्न आसथिबा कालबैशाखी प्रभाव रे एही सर्कस 80 फुट उच्च और विशाल टेंट उड़ाई नहीं। टेंट भुशुड़िबा जोगु तळे थिबा दर्शकों सीट गुड़िक भांगी जाइछि। बिजुली खुंट उपड़ी पड़ी और तार छिड़ी तले पड़ी। तेबे सौभाग्यवशतः शो आरंभ पूर्व अघटन घटी दर्शकों जीवन अड़पके रक्षा पाई जाइछि। राजधानी प्रदर्शनी पड़िया रे काली संध्या 7टारे यार शो हेबार थिला। तेबे टेंट संपूर्ण ध्वंस हो जाइथिबारु याकु सजाड़िबाकु प्राय 4 दिन लागिबो बोली सर्कस कमिटी सदस्य कहिसंती। काली शो देखिबाकु प्राय 300 लोक टिकेट बुक करिथिले। नंबर 11 23 रे विरोधी मेगा शो महामेडी रे सामिल हेबे अनेक नेता। आसंता 23 रे विरोधी मेगा शो पाटना रे हेबाकुथिबा महामेडी रे सामिल हेबे कांग्रेस नेता राहुल गांधी, एआईसीसी सभापति मल्लिकार्जुन खड़गे समेत विभिन्न राज्यर मुख्यमंत्री और दलीय मुख्य। महासमावेश रे पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उत्तर प्रदेश पूर्वतन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव प्रमुख सामिल हेबा नहीं संभावना रही। सेहीपरि झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, तमिलनाडु मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, जेडीयू सभापति राजीव रंजन, शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे, एनसीपी नेता शरद पवार प्रमुख जोग देवा आशा रही। गत किछि दिन धरी बीजेपी विरोध में मेंट को शक्तिशाली करने लगी विभिन्न नेता घन घन उद्यम करुवा देखा जाउछि। नंबर 12 रथयात्रा शेष समन्वय बैठक में जोगदेवे मुख्यमंत्री। आउ 12 दिन पर विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा आउ एथिपाई चली जोरदार प्रस्तुति। आसंता 13 तारिख पूर्वाह्न 11टार अनुष्ठित होब रथयात्रा तृतीय तथा शेष समन्वय बैठक। प्रतिवर्ष भली चलित वर्ष यह बैठक में जोगदेवे मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक। यह बैठक में रथयात्रा प्रस्तुतिर विस्तृत समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री। यह समन्वय बैठक में मुख्यमंत्री समेत मुख्य शासन सचिव, आईन मंत्री, अन्य विभागीय मंत्री, पुलिस डीजी सह अन्य विभाग बड़ अधिकारी जोग देवार कार्यक्रम रही। बैठक में मुख्यमंत्री समीक्षा करने सह आवश्यक निर्देश देवे। यह बैठक बसिबा पूर्व अर्थात 12 तारिख में गजपति महाराजों अध्यक्षतार श्रीमंदिर परिचालना कमिटी बैठक बसिबो बोली स्थिर कर जाइछि। नंबर 13 भारत में स्थापना हेबा टेस्ला मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। आसेम्बल हेबा गाड़ी। विश्वर सबुठु वित्तशाली व्यक्ति एलन मस्क और सरकार मध्य जारी टणाओटरा एवं समाप्त होइथिबा भली देखा जाउछि। टेस्ला भारत सरकार सही सबु शर्त मानि नैछंती जो थे कंपनी को तार गाड़ी भारत में आसेम्बल करने को पड़ो बोली कहुजाइथिला। यापर कंपनी भेंडर भाव काम करिपारे। कंपनी जो भली भारत सरकार वर्तमान गोटे पाद आगक बढ़ी सरकार मध्य कंपनी प्रति तांकर नीति को सामान्य कोहड़ करिसंती। सूत्ररू मिलिथिबा सूचना अनुसार भारत सरकार टेस्ला को कौनसी रिहाती देवे नाही। तेबे एथिलागी राज्य माने स्वाधीन निष्पत्ति नहीं पारिबे। अर्थात सरकार मध्य चाहंतिनी जे विश्वर सर्वबृहत ईवी
मेकर भारतर हाथछड़ा न हेउ। एहा छड़ा जदि भारत में टेस्लार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होउछि तेबे निजुक्त सुजोग सृष्टि हेबा सह मैन्युफैक्चरिंग रे सेक्टर रे मध्य ग्रोथ देखा मिलिबो। नंबर 14 16 दिन में बैंकिंग व्यवस्था को फेरी 50% 2000 नोट। 2000 नोट बजार प्रत्याहार नहीं आरबीआई घोषणार 16 दिन पर बैंकिंग व्यवस्था को 1.80 लक्ष कोटी मूल्यर 2000 नोट फेरी। 2023 मार्च 31 सुधा बजार में थिबा मोट 2000 नोट्र 50% अर्थात नेट बैंकिंग व्यवस्था को फेरी आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास। आरबीआई अनुसार बैंकिंग व्यवस्था रे 3.62 लक्ष कोटी मूल्यर 2000 नोट प्रचलन होइथिला। आरबीआई घोषणा पर एवं 85% 2000 नोट बैंक रे जमा करुछंती। 2000 नोट जमा बदल पाई आरबीआई 4 मास समय देइछि। नंबर 15 महानगा ट्रेन दुर्घटना। भुवनेश्वर एम्स रे एबे भी रही 82 मृतदेह। महानगा ट्रेन दुर्घटना रे 288 जनकर मृत्यु घटी बेले भुवनेश्वर को 193टी मृतदेह अणाଯାଇଥିଲା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 111ଟି को संपृक्त परिवार लोकंको हस्तांतर କରାଯାଇଛି। आहुरी 82 जन मृतदेह एम्स रे रहिछंती। सेगुडी को स्वतंत्र कंटेनर रे रखाଯାଇଛି। 82टी मृतदेह मध्यरु अधिकांश चिन्हट होई पारि नथिबा बेले आउ किछरे एकाधिक दाबीदार रहिथिबारु हस्तांतर होई पारिनी। नंबर 16 15 सुधा चार्जसीट 30 सुधा डब्ल्यूएफआई को मिलिबो नुआ सभापति। भारतीय कुस्ती महासंघ डब्ल्यूएफआई सभापति तथा बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह विरोध में दीर्घ दिन है आंदोलन करुवा रेसलर मैंने गतकाली क्रीड़ा मंत्री अनुराग ठाकुर को भेटा पर यह समस्या समाधान मुह होता चर्चा होउछि। रेसलर मान दाबी अनुଯାयी आसंता 15 तारिख सुधा यह मामलार तदंत हेबा सह आसंता 30 तारिख सुधा भारतीय कुस्ती महासंघ को नुआ सभापति मिलिबो बोली प्रतिश्रुति देइछंती क्रीड़ा मंत्री। प्रतिश्रुति अनुଯାयी धार्य समय दाबी पूरण नहेले पुणी थे रेसलर मैंने आंदोलन आरंभ करिबे बोली स्पष्ट सूचना देइछंती। नंबर 17 पीएम मोदी को आंब पठेले मुख्यमंत्री ममता। अनेक प्रसंग में सर्वदा केंद्र सरकार को टार्गेट कर आसुछंती पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित राजनैतिक संबंध तिक्त हेले मध्य प्रतिवर्ष पीएम मोदी निकट को सुआदिया आंब पठेबा को भूलती नहीं ममता। 12 वर्षरू चली आसथिबा एही परंपरा को बजाय रखी चलित वर्ष मध्य ममता बनर्जी प्रधानमंत्री मोदी निकट को फड़मूड़ पठेइछंती। आउ एथिरे सुआदिया आंब सामिल। खबर अनुଯାयी ममता बनर्जी पीएम मोदी को हिमसागर लक्ष्मण भोग एवं फाजिली किस्मर 4 किलो आंब पठेइछंती। प्रधानमंत्री मोदी व्यतीत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एवं भारतर प्रधान विचारपति डीवाई चंद्रचूड़ निकट को मध्य आंब पठेइछंती। नंबर 18 जुलाई 8 रे बेंगल पंचायत निर्वाचन आज नामांकन। पश्चिमबंग पंचायत निर्वाचन आसंता जुलाई 8 तारिख में अनुष्ठित हेबो। एने कालीठू जून 15 जाए प्रार्थी माने नामांकन दाखल करिपारिबे बोली निर्वाचन कमिशन घोषणा करिसंती। जुलाई 8 रे भोट ग्रहण हेबाकु थिबा बेले जुलाई 11 रे गणति सह फलाफल प्रकाश पाइबो। नुआकरी राज्यर मुख्य निर्वाचन अधिकारी होइतिबा राजीव सिन्हा गुरुवार बेंगल रे अनुष्ठित हेबाकु थिबा त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन तारीख घोषणा करिसंती। पश्चिमबंगर राज्य निर्वाचन कमिशन ऑफिस रे श्री सिन्हा कहिसंती आज ही निर्वाचन आचरण विधि राज्य में लागू कर दार्जिलिंग और कालिम्पोंग रे 2 स्तरीय और राज्यर बाकी स्थान में 3स्तरीय पंचायत निर्वाचन पर लोक मैंने जुलाई 8 रे भोट देबे। नामांकन प्रक्रिया जून 9 रु आरंभ होई जून 15 जाए चलिबो। नंबर 19 बीएसएनएल पुनरुद्धार पर 90,000 कोटीर पैकेज मंजूरी। बीएसएनएल सरकार बड़ घोषणा 90,000 कोटी टंका पुनरुद्धार पैकेज। बुधवार होइतिबा कैबिनेट बैठक में सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड 89,047 कोटी टंका पुनरुद्धार पैकेज घोषणा कर एही पैकेजर व्यवस्था बीएसएनएल 4G और 5G सेवा व्यवहार हेबो। सरकार कहवा अनुଯାयी गोटे सरकारी टेलीकॉम कंपनी को भल भाव में विस्तार पर सुजोग मिलवा दरकार। तेबे यह पूर्व 2022 जुलाई रे मध्य केंद्र सरकार बीएसएनएल पुनरुद्धार पैकेज 1.64 लक्ष कोटीर पैकेज घोषणा करथिले। नंबर 20 निजर अधा संपत्ति दान करिवे जेरोदा को फाउंडर। निजर अधा संपत्ति दान करिवे ब्रोकरेज जीरोधा को फाउंडर निखिल कामत। द गिविंग प्लेज अभियान रे सामिल होइतिबा भारतर सबठरू कम वर्ष बयसर व्यक्ति होचंती निखिल। अजीम प्रेमजी किरण मजुमदार सह रोहिणी एवं नंदन निर्णयनी परे निखिल कामत एथिरे सामिल होइतिबा चतुर्थ भारतीय। द गिविंग प्लेज अभियान स्थापना करथिले बिल गेट्स एवं निवेशक वारेन बफेट। यह एक समाजसेवा संस्था। एथिरे सामिल लोक मैंने समाजर मंगल पाई निज संपत्तिर अनेक अंश दान करती। फोर्स अनुसार नंबर 21 बाहानगा ट्रेन दुर्घटना। दक्षिण पूर्व रेलपथर 125 कोटी टंका क्षति।
बालेश्वर जिला बाहानगा बजार स्टेशन रे करमंडल एक्सप्रेस दुर्घटना रे 125 कोटी टंका क्षति होइतिबा रिपोर्ट आसीछि। एही भयावह ट्रेन दुर्घटना रे वर्तमान सुधा दक्षिण पूर्व रेलपथर 125 कोटी टंकारु अधिक क्षति होइतिबा सूचना रहिछि। एही परिमाण 250 कोटी टंका को वृद्धि पाइबार संभावना रहिछि। रेल इंजिन बगी और लाइन समेत अन्यान्य संपद क्षतिग्रस्त जोगु रेलपथ को कोटी कोटी टंकार क्षति सहिबाकु पड़िछि। विशेषज्ञ मानक कहवा अनुसार क्षतिग्रस्त दुईटी इंजिन पर 28 रु 30 कोटी टंका, 14 टी कोच पर 18 रु 20 कोटी टंका क्षति होइछि। दुर्घटना परठारु प्रतिदिन 100 टी मालबुहा ट्रेन रो चलाचल प्रभावित होइछि। लाइन बिछेइबा, विद्युतीकरण, सिग्नाल समेत पॉइंट सिस्टम आरंभ पई रेलवेर 15 रु 20 कोटी टंका खर्च हेबो बोली आकलन कर जाइछि। सेहीपरि मृतक यात्री मानक परिजन और आहत मानक क्षतिपूरण पई रेलबाई को अतिरिक्त अर्थ व्यय करबाकू पड़िछि। नंबर 22 कमिपारे पेट्रोल डीजेल दर। कमिपारे पेट्रोल डीजेल दर। तैल वितरक कंपानी बीपीसीएल, एचपीसीएल और इंडियन ऑयल परी कंपानी तैल दर ह्रास करिपारंती। एने न्यूज एजेंसी एएनआई पक्षरु सूचना मिलिछि। सरकारी सूचना को आधार करी एएनआई पक्षरु कुहा जाइछि जे एही कंपानी गुड़िक सेमानक क्षति भरण करि सारिछंती। एबे सेमाने सामान्य स्थिति को फेरिछंती। तेणु तैल कंपानी पेट्रोल डीजेल दर ह्रास करिपारंती। एएनआई पक्षरु कुहा जाइछि ओएमसी रो त्रैमासिक व्यवसाय भल होइछि एवं आउ एक त्रैमासिक सफलता पाइबाकू जाउछंती। तेणु ओएमसी डीजेल और पेट्रोल दर काटी पारे। नंबर 23 भारत विरोधी एजेंडा चलाउथिबा लोकंक हाथ में बीबीसी, कहिले केंद्र मंत्री हरदीप सिंह पुरी। केंद्र गृह एवं नगर उन्नयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी मंगलवार बीबीसी कार्यालय उपरे आईटी रेड और प्रेस स्वाधीनता उपरे उठुथिबा अभियोग उपरे जवाब रखिछंती। केंद्र मंत्री कहिसंती जे ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर भारत विरोधी रे एजेंडा चलाउथिबा लोकंक हाथ में रहिछि। केंद्र मंत्री हरदीप सिंह पुरी मीडिया को संबोधित करी कहिसंती जे आम आईन पारदर्शी अटे। जदि केही टैक्स पैठ न करे तेबे ताकू नोटिस पठा जाए। सेमाने कहंती यह प्रेसर स्वाधीनतार प्रसंग अटे। जदि केही टैक्स पैठ न करे तेबे ताकू नोटिस पठा जाए। सेमाने कहंती यह प्रेसर स्वाधीनतार प्रसंग अटे। मु एई विषय रे अधिक कहिबाकू चाहू नहीं, किंतु अतीत रे अनेक किछि कार्यरु जणा पडुछि जे भारत विरोधी एजेंडा चलाउथिबा लोकंक हाथ में रहिछि बीबीसी। नंबर 24 दुई जेएनयू छात्री सदाचरण सह अपहरण उद्यम। पीएचडी छात्र को माड़। देशर अन्यतम प्रख्यात शिक्षानुष्ठान जेएनयू निकटरे घटी अभावनीय घटना। एठारे रही पाठ पढ़ुवा 2 जण छात्री को 5 जण युवक असदाचरण करने सह अपहरण करने को उद्यम करिसंती। अपहरण उद्यम फेल मारिबार प्राय 1 घंटा पर 5 युवक जेएनयू रे पीएचडी करुवा जड़े छात्र को प्रबल माड़ मारिछंती। मंगलवार विलंबित राति पूरा घटना घटिथिबा बेले एहाकु नै कैंपस रे तीव्र असंतोष प्रकाश पाइछि। असदाचरण और माड़ मारिथिबा युवक माने पूर्वरु मध्य कैंपस पाखरे गाड़ी चलाइबा सह अन्य पिलामानंकु मध्य हैरान करिथिले। घटना रे सामिल थिबा संदेह रे बीटेक छात्र अभिषेक को पुलिस गिरफ्त करिछि। तेबे अन्य 4 जण एबे भी फेरार रहिछंती। नंबर 25 ऑस्ट्रेलिया रे ब्यान हेबो नाजी प्रतीक आसीबो आईन। ऑस्ट्रेलिया रे ब्यान हेबो नाजी प्रतीक एवं ताहा सह जड़ित सामग्री। सर्वसाधारण भाव में नाजी सैल्यूट और नाजी प्रतीक प्रदर्शन पर मध्य प्रतिबंधक लगाजिबो। एथिपई खूब शीघ्र ऑस्ट्रेलिया रे आसीबो नुआ आईन। गुरुवार देश अटर्नी जनरल मार्क डेफ्रुस एने गणमाध्यम को सूचना देइछंती। एही नियम पर नाजी चित्र जेमिति कि स्वस्तिक, नाजी पार्टीर पार्लियामेंटारी विंग सह जड़ित चिन्ह जेपरि कि उज्जवलमय बिजुली चिन्ह आदि बैन कराजिबो। एही आईन अनुसार नाजी पताका, आर्मबैंड एवं नाजी प्रतीक थिबा कपड़ा उपरे मध्य बैन लगाजिबो। केवल सेतिक नुहे नाजी सैल्यूट उपरे मध्य प्रतिबंधक लगाजिबो। नंबर 26 हिंडेनबर्ग टार्गेट हैला आउ एक कंपनी। दिनकरे 80% खसिला शेयर मूल्य। अमेरिकार बेस्ट सर्ट सेलर हिंडेनबर्ग टार्गेट पलटिछि टिंगो ग्रुप। एही ग्रुप आफ्रिका, साउथ ईस्ट एशिया एवं मिडिल ईस्ट रे ऑपरेट होउछि। टिंगो ग्रुप चलित वर्ष हिंडेनबर्ग रो चतुर्थ टार्गेट होइथिबा बेले दिनकरे ग्रुप रो शेयर मूल्य 80% पर्यंत ह्रास देखा जाइछि, जहाँ आमदानी ग्रुप रो कोनोसी कंपनी रो शेयर मूल्य ठारू मध्य ढेर कम होई जाइछि। हिंडेनबर्ग रिसर्च जेबे भी कोनोसी कंपनी रो रिपोर्ट जारी करे सेतेबेले गोटिए परे गोटिए ट्वीट करि थाए, जोथरे कंपनी रो दोष त्रुटि बखाणी थाए। एथर हिंडेनबर्ग टिंगो ग्रुप रो संस्थापक डोजी मोम्बोसिंग उपरे गुरुतर अभियोग आनिछि। हिंडेनबर्ग ग्रुप रो फाइनेंशियल उपरे प्रश्न उठैथिबा बेले याको स्काम बोली कहिछि। एही रिपोर्ट परे बजरंग रे टिंगो ग्रुप रो शेयर प्रभावित होइछि। नंबर 27 कनाडा जंगल रे भीषण निया 10 राज्य रे प्रभाव।
କାନାଡ଼ା ଜଙ୍ଗଲରେ ଲାଗିଛି ଭୟଙ୍କର ନିଆଁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନିଆଁ ଭୀଷଣ ମାତ୍ରାରେ ମାଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଦେଶର 10ଟି ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ନିଆଁର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେଠାକାର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଖରାପ ହେବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 33,000 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଅଞ୍ଚଳ ନିଆଁ କବଳକୁ ଆସିସାରିଛି। ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ବିଗତ 10 ବର୍ଷରେ ଲାଗିଥିବା ହାରାହାରି ନିଆଁଠାରୁ 13 ଗୁଣ ଅଧିକ। ସେହିଭଳି ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି ତାହା ଆକାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବେଲଜିୟମ ତୁଳନାରେ ବଡ଼। ଏହି କାରଣରୁ 1.20 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ନିଜ ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ପଡ଼ିଲେଣି। ଆହୁରି ଅନେକ ଲୋକ ଘର ଛାଡ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 28 103 ଦିନ ପରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପାଇ ବି ମନ ଖୋଲି କଥା ହୋଇପାରିଲିନି, କହିଲେ ସୀମା ସିସୋଦିଆ। ଦୀର୍ଘ 103 ଦିନ ପରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦେଖି ବେଶ୍ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆପ୍ ନେତା ମନୀଷ ସିସୋଦିଆଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୀମା ସିସୋଦିଆ। ବହୁ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ସୀମା 3 ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବା ବେଳେ ନିଜ ଅନ୍ତରର କୋହକୁ ଏକ ଇମୋସନାଲ ପୋଷ୍ଟ ଜରିଆରେ ବଖାଣିଛନ୍ତି। ସୀମା ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ଥିଲେ ବି ଘର ବାହାରେ ଜଗିଛି ପୁଲିସ, ଯାହାକି ଖୁବ୍ ଅସ୍ୱସ୍ତିକର ବୋଧ ହେଉଛି। ଏପରିକି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ମନ ଖୋଲି ପଦେ କଥା ହୋଇପାରିଲି ନାହିଁ, କାରଣ ବାହାରେ ପୁଲିସ ପ୍ରତିଟି ଶବ୍ଦ ଉପରେ କାନ ରଖିଥିଲା। ରାଜନୀତି ବହୁତ ଖରାପ, ଏଥିରୁ ଦୂରେଇ ରୁହ ବୋଲି ବହୁ କହିବା ପରେ ସେ ବୁଝିନଥିଲେ ବୋଲି ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସୀମା। କେବଳ ମୁଁ ନୁହେଁ, ବହୁ ଶୁଭଚିନ୍ତକ ବି ମନୀଷଙ୍କୁ ରାଜନୀତିରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ କହୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେ କାହା କଥା ନ ଶୁଣି ସାମ୍ବାଦିକତାରୁ ସିଧା ରାଜନୀତିକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ। କେଜରିୱାଲଙ୍କ ସହ ମିଶି ଦଳ ଗଠନ କଲେ। ନମ୍ବର 29 ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା, ବସ୍ ଧକ୍କାରେ 25 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଏକ ବଡ଼ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 25 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରେ 9 ଜଣ ଶିଶୁ ଓ 12 ଜଣ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଉତ୍ତର ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଏକ ମିନି ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 25 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏନେଇ ବୁଧବାର ପୋଲିସ ଏହାର ସୂଚନା ଦେଇଛି। ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ମିନି ବସ୍ରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ବିବାହ ସମାରୋହରୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ସରେପୁଲ ପ୍ରଦେଶର ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ନମ୍ବର 30 WTC ଫାଇନାଲ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ 469ରେ ଅଲଆଉଟ୍, ସିରାଜଙ୍କୁ 4 ୱିକେଟ୍। ଇଂଲଣ୍ଡର ଓଭାଲରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ ଫାଇନାଲର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିଶାଳ 469 ରନ୍ କରି ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ମ୍ୟାଚର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ କେବଳ 3ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବେଳେ କାଲି 7ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଛେଦ ଟାଣିଛି। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ସର୍ବାଧିକ 4 ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପକ୍ଷରେ ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍ 163 ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଷ୍ଟିଭ୍ ସ୍ମିଥ୍ 121 ରନ୍ର ଇନିଂସ ଖେଳିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 3 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 326 ରନ୍ କରିଥିବା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପାଇଁ କାଲି ସ୍ମିଥ୍ ଓ ହେଡ୍ ଦମଦାର ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ। ଭିଡିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।